So today I am here with you all with a new chapter for class 9, that is cell, fundamental unit of life. For class 9 students, as they have already studied in class 8 about cell, right? In class 8 we studied about the basic structure of cell, like the basic components of the cell. Now in class 9 we will move one step ahead as we are already moving to the higher classes. So first of all, we will discuss the definition of cell. Cell definition. So basically, cell is the smallest unit, right? So according to me, there are three basic definitions for cell. One is that it is building block of life. I will explain one by one these definitions, right? Building block of life. Second is, it is fundamental unit of life. Fundamental unit of life. And third is, it can be structural or functional unit of life. Now let's discuss that how we can say that it is a building block of life. Now if I talk about the wall किससे बनी होती है? That is made up of bricks, right? तो bricks एक cell है. Same way as the wall is made up of bricks, same way our body is made up of cell. So simply we can say there is a building block of life. Second is fundamental unit of life, because we are already studying in this chapter, going to study about that cell is the fundamental unit of life. It means it performs so many functions, very important, basic units, so all these things will include in this chapter. So that's why we can say fundamental unit of life. Third is structural or functional unit of life. Structural or functional unit means, as from its name, the structure of the organism will depend upon the structure of the cell. Function also performed by the cell. If I take the example of a sparrow and a human being, sparrow and human beings, both are made up of cell, but sparrow looks completely different from human beings. So what does it mean? It means that sparrow is made up of cells, human being is made up of cell, but both are having their different structures, right? So sparrow is made up of its own cell, human being is made up of its own cell, right? Then after this, how it was discovered कि जो cell है वो discover कैसे हो, right? And we know that cell was discovered by Robert Hooke. ये हमने क्लास 8 में ही स्टडी किया था. That is Robert Hooke in which year? 1665. In 1665, right? So how does he discovered? When he observed the coke. अब ये काफी लोगों को ये नहीं होगा पता कि कोक क्या होता है. कोक एक ओक ट्री का जो बार्क ऑफ ट्री होता है ना, ओक ट्री का बार्क है, उसका जो डेड लेयर होती है उसको बोलते हैं हम कोक, राइट? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री. उसको जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया, देन ही फाउंड दिस सेल, राइट? बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो कॉर्क्स उसने ऑब्जर्व किए वो डेड थे. तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुई तो उसने देखा कि हनीकॉम्ब की तरह एक बॉक्सेस बने हुए थे उसमें. दीज आर ऑल ब्लैंक, एम्प्टी बॉक्सेस थे. तो ये एम्प्टी बॉक्सेस क्यों थे? बिकॉज कॉर्क इज डेड. डेड सेल है तो डेड सेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो ब्लैंक ही होगा, खाली एम्प्टी बन जाएगा, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह. तो दैट्स व्हाई इट वाज लुकिंग लाइक दिस, राइट? देन आफ्टर दिस, तो जो रॉबर्ट हुक ने
डिस्कवरी जरूर की थी, सेल की टर्म को डिफाइन किया था सेल को, बट डेड सेल से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उसके बाद जो मेन हमारे पास साइंटिस्ट आए, वो थे हमारे एंथनी वॉन ल्यूनबर्ग, राइट, एंथनी ल्यूनबर्ग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल, क्योंकि पहले हमारे पास क्या हुआ था, डेड सेल, तो इन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल। लिविंग सेल के लिए इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर कलेक्ट किया, उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो जो फर्स्ट लिविंग सेल था वो हमारे पास किसने डिफाइन किया था, एंथनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। रॉबर्ट हुक ने सिर्फ पॉइंट किया था टर्म को, दैट इज सेल। उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, और रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, राइट, उसको डिफाइन किया था। देन एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास, पुरकिंजे, जिन्होंने बोला कि ठीक है जी, लिविंग सेल है, उसके पास न्यूक्लियस भी है, सब कुछ है, वो सारी चीजों को उन्होंने एक टर्म दी, नाम दिया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, राइट, ये हमें दिया था पुरकिंजे ने। So these are the main scientists which you can learn these names, that who discovered what, right? Okay. Then came cell theory. Cell theory. तो सेल थ्योरी किसने दी, हमारे दो बायोलॉजिस्ट थे, and that was Schwann and Sladden. And Schwann, two biologists. इन्होंने क्या बोला हमारे पास, इन्होंने बोला all plants are animals, all plants and animals are composed of cells. मतलब दे सेड कि प्लांट है भाई, प्लांट के डिफरेंट फंक्शन है, वो भी सेल से बने हैं। एनिमल्स है, एनिमल्स के डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन बने वो भी सेल से हैं। तो बने दोनों सेल से, लेकिन अपने अपने सेल से। तो उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सेल को उन्होंने बोला कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस थ्योरी को बाद में एक्सपेंड किया गया, वर्चुअल साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इस थ्योरी को फर्दर एक्सटेंड किया। इन्होंने बोला भाई तुम लोग बोल रहे हो कि सेल 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 सेल, तो सेल ना तो आसमान से गिरते हैं ना ही जमीन में से निकलते हैं, तो ये क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, राइट। वर्चुअल ने हमें ये बोला कि सेल्स अराइज फ्रॉम pre-existing cells। जैसे अगर हम बात करें कि एक मेल है और एक फीमेल है, राइट, यहां पे हमारे पास एग है, फीमेल रेड कलर है, और ये हमारे पास यहां पे स्पर्म है, राइट। व्हेन दे फ्यूज टुगेदर देन दे फॉर्म द जाइगोट। तो ये कहीं नई जगह से नहीं आते हैं, तो दैट मीन्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही हमारे पास ये सेल्स बन के आते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज सेल थ्योरी, राइट, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय वर्चुअल। ओके, तो इस हिसाब से सेल से कहता हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, लाइक वन सेल्स ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जिसके अंदर एक सेल होगा, वो सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करेगा। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, अमीबा, पैरामीशियम, सो दीज आर द यूनिसेलुलर मल्टी ऑर्गेनिजम्स, और दूसरी साइड है मल्टी सेलुलर विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, उनके पास एक से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। So that is
हम इसको डिस्कस करते हैं अभी टेबुलर फॉर्म में। राइट, सो हियर वी कैन मेंशन कैरेक्टरिस्टिक। यहां हो गया यूनिसेलुलर, यहां बन गया मेरे पास मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल नंबर। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सेल नंबर। तो इन यूनिसेलुलर इफ आई टॉक अबाउट सिंगल, क्योंकि यूनिसेलुलर मतलब सिंगल, इनके पास क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, राइट। ऑन द अदर हैंड सेकेंड फंक्शन, तो ये फंक्शन कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सिंगल सेल है तो सिंगल सेल ऑल द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, क्योंकि सेल ही बेचारे के पास एक है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कर सके, राइट। दूसरी तरफ इनके पास क्या है डिफरेंट सेल्स, परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं। ओके, देन थर्ड वी हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पास तो सिंगल सेल ही है, तो डिवीजन ऑफ लेबर ये नहीं करता, नॉट परफॉर्म्ड, राइट। डिवीजन ऑफ लेबर ये नहीं करता। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं मल्टीसेलुलर की, तो मल्टीसेलुलर के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर होगी। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड to perform special functions। Special functions, cells are specialized to perform special functions। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं, तो सभी की डिवीजन हो रखी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां पे सेल्स है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अगर डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, तो डिवीजन ऑफ लेबर ना हो तो क्या होगा कि जो हार्ट वाले सेल्स हैं वो ऐसी बात करें आपस में कि चलो आज हार्ट में नहीं आज स्टोमक में चलते हैं, स्टोमक में जाके HCl को ऐसे ऐसे मिक्स करके कुछ ना कुछ नया करते हैं, राइट। और उधर से किडनी वाले सेल निकल के भी आ जाएंगे स्टोमक में जाके उनके साथ हार्ट वाले सेल के साथ प्ले करते हैं। तो उससे क्या होगा कि सेल्स किडनी से भी निकल गए, हार्ट से भी निकल गए, तो सारे स्टोमक में इकट्ठे हो गए, हार्ट फेल, राइट। तो हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, इसी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होती है। दूसरी सिंपल एग्जांपल अगर हम ले लें, जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, वहां पे जो मिस्त्री होता है वो हमेशा बोल के रखता है कि ये मसाला बनाएगा, ये ब्रिक्स, उनकी डिवीजन ऑफ लेबर हो रखी है। अगर उनको बोले कि अपनी मर्जी से काम करते रहो तो हर बंदा कोई कुछ उठाएगा कोई कुछ उठाएगा, तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगी, राइट। तो जहां पे मल्टी सेल्स हैं उनको डिवीजन ऑफ लेबर करना बहुत जरूरी है, डिवीजन ऑफ लेबर से ही वो सक्सेसफुल रहते हैं, राइट। देन वी हैव द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इन्वॉल्व द सिंगल सेल, क्योंकि इसके पास तो सिंगल सेल ही है, इन्वॉल्व्स सिंगल सेल, राइट। दूसरी तरफ अगर मल्टी सेलुलर की बात करें, स्पेशलाइज्ड सेल्स है इसके पास रिप्रोडक्शन के लिए, स्पेशलाइज्ड सेल्स।
जर्म सेल भी हो सकते हैं that take part in this. नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ स्पेन. क्योंकि इनके पास सिंगल है सेल तो इनका क्या होगा, शॉर्ट, ज्यादा लंबा नहीं होता, राइट. और दूसरी तरफ इनका होता है लॉन्ग लाइफ स्पैन, दैट इज लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ दिस, राइट. सो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द हु डिस्कवर्ड सेल, सेल थ्योरी. क्या क्या सेल थ्योरी में आया हमारे पास, राइट. सेल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हैं. जितने भी सेल्स हैं वो बेसिकली सिमिलर होते हैं केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, राइट. और अगर हम ऑर्गेनिज्म का फंक्शन देखें एज अ होल तो इट्स द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल. उसी की एक्टिविटी का ही रिजल्ट होता है. देन सेल थ्योरी किसने दी, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, एंड देन द कंपैरिजन बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, राइट. This is all about lecture 1 for cell, fundamental unit of life. In the lecture 2 we will discuss about the components of the cell, and in the next lecture we will discuss the cell organelle like cell membrane or selectively permeable membrane that we call in the lecture 2 for fundamental unit of life. Thank you so much.